Guys, here we have a question. The time dependence of the position of particle of mass m is equal to 2, right? And it is given by r vector equals to 2t I naught minus 3t square j naught, right? And its angular momentum with respect to the origin at time is when time is 2, that is 2 second. So our question will be, first of all, angular momentum vector is equal to mass m multiplied by r dash, that is r vector, multiplied by velocity v vector. Okay, so here mass is equal to 2, that is 2 kg. It is already given, right? So putting the value in r dash, which is equal to 2t I naught minus 3t square j naught equal to 4I naught minus 12 j naught, because at time period is given as 2 seconds, right? Our time period is already given in the question. Now for the v vector, after differentiating dr vector upon dt, we will be getting 2I naught minus 6tj naught, which will be equal to 2I naught minus 12 j naught after differentiation. Okay, so now r vector multiplied by v vector will be equal to 4 I naught minus 12 j naught multiplied by 2I minus 12 j naught. The vector product of this will be equal to 24 minus 24 k naught. Okay, so we have angular momentum L vector, which is equal to m into r vector multiplied by v vector. That will be giving us value of minus 48 k naught. So now our answer is matched with option number 2, which is the correct answer. Hello guys, in this session we are going to solve a JEE main physics problem. So the problem given to us is a particle of mass 20 gram is released with an initial velocity 5 meter per second along the curve from point A as shown in the figure. The point A is at a height h from point B. The particle slides along the frictionless surface. When the particle reaches point B, its angular momentum about O will be, okay, take G is equals to 10 meter per second square. So what is given in this question, the data given is this is the particle initially at point A, and the velocity of those particle is 5 meter per second initially. Okay, now what happens, it slides down on this frictionless surface और ये पॉइंट B पे आ जाता है किसी टाइम t पे, लेट अस अज्यूम, ठीक है। और B पॉइंट जो है वो h हाइट नीचे है, यानी कि जो A पॉइंट है वो B से कितना ऊपर है, h हाइट ऊपर है, और h की वैल्यू अपने को गिवन है 10 मीटर। ओके, h की वैल्यू गिवन है 10 मीटर, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है इस पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है आपका L इज इक्वल्स टू एम वी आर। ओके, तो एम वी आर को फाइंड करने के लिए मुझे मास चाहिए, वेलोसिटी चाहिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, पॉइंट की, जिस पॉइंट के अबाउट मैं फाइंड कर रहा हूँ उसकी और पार्टिकल की। अब मेरे पास मास ऑफ द पार्टिकल है बट स्पीड ऑफ द पार्टिकल आई डोंट नो एट दिस पॉइंट। ओ पॉइंट पे बी पॉइंट के लिए बात कर रहा हूँ, तो बी पॉइंट की स्पीड ही मुझे काउंट करनी पड़ेगी जब मुझे ओ के अबाउट पूछा गया इस पॉइंट पे, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं, एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ। तो एनर्जी कंजर्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ओनली इंटरनल फोर्सेज है और वो भी कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम की, इनिशियल एनर्जी होगी एम जी एच, जब वो एच हाइट पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी और इसकी स्पीड के कारण इसकी एनर्जी होगी हाफ एम
वी ए स्क्वायर, वी ए इज वेलोसिटी एट पॉइंट ए, ओके, विल बी इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे देखो हाइट कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। मैं पॉइंट बी को रेफरेंस मान के काम कर रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट बी को रेफरेंस मान के काम कर रहा हूँ मैं। तो पॉइंट बी पे एच की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी हुई 0 और काइनेटिक एनर्जी हुई, लेट अस अज्यूम वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज वी बी, सो हाफ एम वी बी स्क्वायर, ओके। चलिए अब मुझे m की वैल्यू गिवन है, g की वैल्यू मुझे पता है 10 लेनी है, h की वैल्यू पता है, va की वैल्यू भी पता है, तो मेरे पास वी बी की वैल्यू इजीली आ जाएगी। सबसे पहले तो क्या करता हूँ, m से m को मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। g की वैल्यू है 10, मल्टीप्लाई करेंगे उसको, हाइट है 10 मीटर प्लस 1/2, va की वैल्यू है 5, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/2 एन वी बी स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वी बी की वो क्या आएगी, 100 प्लस 25/2 और मल्टीप्लाइड बाय 2, होल टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू आ गया वी बी की वैल्यू, ठीक है, वी बी स्क्वायर की वैल्यू। अब वी बी की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बन जाता है 200 प्लस 25, ठीक है, इसका अंडर रूट ले लूँगा तो आ जाएगी वैल्यू वी बी। तो वी बी की वैल्यू कितनी होगी, 225 विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो बी पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वो होगी 15 मीटर पर सेकेंड, जो स्पीड होगी या वेलोसिटी जो होगी उसकी वैल्यू होगी 15 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, एल इज इक्वल्स टू एम वी आर। तो मास ऑफ द बॉल दिया हुआ है, मास ऑफ द पार्टिकल गिवन है 20 ग्राम, यानी कि 20 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और वेलोसिटी आ गई है 15 मीटर पर सेकेंड, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से कितनी है, 10 प्लस 10 यानी कि 20 मीटर, तो 20 लिख दूंगा यहाँ पे। इट बिकम्स 15 टू ज़ा 30 एंड 10⁻³ तो -3 से मैंने 1 0 2 0 को कैंसिल किया और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो ये हो गया 4, 2 2 ज़ा 4 और 4 को मल्टीप्लाई किया 1.5 से तो आ गया 6, ठीक है। तो 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ गया मेरे पास एंगुलर मोमेंटम, और ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, दैट अ बॉब ऑफ मास m is attached to an inextensible string of length L is suspended from a vertical support. The bob rotates in a horizontal circle with an angular speed of omega radians per second about the vertical, then about the point of suspension. तो देखो क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक बॉब है जिसका मास है m और वो एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ठीक है, और वो एक वर्टिकल सपोर्ट के अराउंड मूव कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से वर्टिकल सपोर्ट रहा होगा, ठीक है, और कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग रही होगी, ओके, और ये एक सर्कल में मूव कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से वो सर्कल रहा होगा जिसमें ये मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये बॉब लगा हुआ है और ये इस तरीके से सर्कल में मूव कर रहा है और यहाँ से ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो मुझसे पूछा है कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है और ये ओमेगा रेडियंस पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो मुझे बताना है कि अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और ऑप्शंस मुझे गिवन है, ठीक है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो ऑप्शन नंबर 1 मुझे बोल रहा है कि जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो है इस पार्टिकल का यानी इस बॉब का वो कंजर्व्ड रहेगा। तो चेक कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल, ठीक है, और ये होता है आर क्रॉस पी, ठीक है, और पी क्या होता है, एम वी, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर इंटू एम वी, और अगर डायरेक्शन की बात करो तो डायरेक्शन क्या होगा, जो आर क्रॉस वी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट, तो ये जो आर है ये क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा ये जो लेंथ है एल, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट बात कर रहे हैं। और अगर इस पॉइंट पर मैं बात करूं तो इसकी वेलोसिटी किधर रहेगी, हम जानते हैं अगर कोई भी पार्टिकल कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है और अगर किसी पॉइंट पे मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो उस कर्व्ड पाथ पे जो टेंजेंट होगा, ठीक है, उस टेंजेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी। तो वेलोसिटी इसकी रहेगी कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको थोड़ा आप 3D में इमेजिन करने का ट्राई करना, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है ये आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आ रही है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है और ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है हमारी तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो अगर मैं यहाँ पे आर क्रॉस वी देखूं तो ये जो है ये है आर वेक्टर, ठीक है, और ये है वी वेक्टर,
तो अगर आर क्रॉस वी करूँ मैं तो कैसे करेंगे कि अगर मैं राइट हैंड का पाम इस डायरेक्शन में प्लेस करूँ और जो फिंगर्स हैं उनको वेलोसिटी के डायरेक्शन में कर्ल करूँ, तो डायरेक्शन किधर आएगा मेरे थंब का, थंब पॉइंट आउट करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा। यानी अगर मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं एम वी आर, तो आर तो कांस्टेंट है, एल लेंथ कांस्टेंट है स्ट्रिंग की, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मुझे बोला हुआ है तो ये तो लेंथ कांस्टेंट रहेगी, मास भी कांस्टेंट रहेगा और वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि मुझे एक फिक्स्ड वैल्यू गिवन है कि फिक्स्ड एक एंगुलर स्पीड ओमेगा से मूव कर रहा है, इसका कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं हमें बताया हुआ है, तो ये फिक्स्ड एंगुलर स्पीड ओमेगा से मूव कर रहा है और हम जानते हैं कि v इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है, तो ओमेगा फिक्स्ड है, आर भी फिक्स्ड है, तो v भी फिक्स्ड होगा, ठीक है। लेकिन एक बात का डिफरेंस है, यहाँ पे जो v इक्वल टू ओमेगा आर है, ये वाला r कौन सा है, इसको r डैश बोल देते हैं, ये r है, ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस रहा होगा वो है r डैश, तो v इक्वल टू होगा ओमेगा r डैश, ठीक है, तो ये r डैश भी फिक्स्ड ही है, ठीक है, तो v भी फिक्स्ड है, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स्ड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज फिक्स्ड, मैग्नीट्यूड तो फिक्स्ड है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, तो इस पॉइंट पे हमने देख लिया कि डायरेक्शन ऐसा है। अब मैं जानता हूं कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है या मैं बोल सकता हूँ स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और ये जो कर्व्ड पाथ है, ये सर्कल है, तो इसके हर डायरेक्शन पे हर पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन अलग अलग होगा, टेंजेंट का डायरेक्शन अलग होगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी अलग होगा, और वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग होगा तो आर क्रॉस वी भी अलग आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करके देख लेता हूँ कि ये स्ट्रिंग जब यहाँ पे रही होगी, ठीक है, जब ये पॉइंट यहाँ रहा होगा, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी किधर रहेगी, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, अंदर की साइड जा रहा होगा, ठीक है, 3D में इमेजिन करना, अंदर की साइड ये जा रहा है और ये एंगल रहेगा 90 डिग्री, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे डायरेक्शन देखो आर क्रॉस वी की, तो इस डायरेक्शन में मैं राइट हैंड का पाम पुट करता हूँ, ठीक है, और फिंगर्स को कर्ल कर देता हूँ इनसाइड वाले डायरेक्शन में, ठीक है, तो थंब किधर पॉइंट आउट करेगा, थंब पॉइंट आउट करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और जैसे ये थोड़ा आगे चला जाएगा तो थंब पॉइंट आउट करेगा इधर, तो हर पॉइंट पर मैं देख सकता हूँ कि इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो एंगुलर मोमेंटम का कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो चेंज हो रहा है। ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है, एंगुलर मोमेंटम चेंजेस इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन डायरेक्शन, तो बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड में तो चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन में फिक्स है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही तो कांस्टेंट है उसका, और ये बोल रहा है मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम चेंजेस इन डायरेक्शन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही बात, अभी हमने यही फाइंड आउट किया कि एंगुलर मोमेंटम जो है उसका डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड उसका चेंज नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। ऑप्शन 4 बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम चेंजेस बोथ इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा, थैंक यू। इस क्वेश्चन में बोला है एक चाइल्ड है जो एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे खड़ा है अपने हैंड को फोल्ड करते हुए, ओके, उसके एक्सिस पे ही खड़ा है, रोटेटिंग एक्सिस पे, ओके। तो बोल रहा है इस कंडीशन में जो उसकी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, ओके। फिर कहता है द चाइल्ड नाउ स्ट्रेच हिज आर्म्स, मतलब जो चाइल्ड है उसने अपने आर्म को स्ट्रेच कर दिया, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, डबल हो गया। तो हमें बताना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम की क्या होगी, ओके। तो चाइल्ड ऐसे कोई प्लेटफॉर्म है रोटेटिंग, उसके एक्सिस पे ऐसे खड़ा हुआ है, तो इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो लग नहीं रहा, तो इसका जो एंगुलर मोमेंट है वो तो कंजर्व ही रहेगा, तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 होगा। स्टार्टिंग में मान लेते हैं I है और जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फिर कह रहा है कि वो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो डबल हो गया 2I, वो मान लेते हैं ओमेगा डैश, तो यहाँ से ओमेगा डैश क्या आ जाएगा, ओमेगा बाई 2, मतलब जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी, आधी होगी। बोला स्टार्टिंग जो टोटल एनर्जी है के इसको टू है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओके। तो बताया अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसमें मान लेते हैं के डैश क्या होगा, हाफ
इस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 2i हो गया ओमेगा डैश स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ इंटू 2i ओमेगा डैश क्या ओमेगा बाई 2, तो ओमेगा स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो जो के डैश वो आ जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर बाई 4, ओके, क्योंकि के इसको 2 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा के बाई 2। तो जो काइनेटिक एनर्जी है अभी वो क्या हो जाएगी, के बाई 2 हो जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है जो यूनिफॉर्म वायर को बेंड करके बनाया गया है। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड ए पे, यानी कि जो वर्टेक्स ए है उस पे हम दो आइडेंटिकल बीट्स रखते हैं, टू स्मॉल आइडेंटिकल बीट्स। अब ट्रायंगल को इस एक्सिस AO के अबाउट रोटेट करा दिया जाता है और साथ में क्या होता है, ये जो दो बीट्स हैं वो AB और AC के अलोंग स्लाइड करने लगते हैं। तो अब हम फ्रिक्शनल इफेक्ट्स नेग्लेक्ट करते हैं, हमें बताना है कि कौन कौन से क्वांटिटीज गिवन ऑप्शंस में से कंजर्व रहेंगे थ्रू आउट दिस प्रोसेस। तो अब हम इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। तो उसके लिए हम ये फिगर बड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेशन हो रही है, ठीक है। ये एक्सिस जो है वो प्लेन ऑफ पेपर में है। अब ये कुछ मान लेते हैं ओमेगा से रोटेट कर रहा है पहले, इनफैक्ट ओमेगा नॉट मान लेते हैं इसको। ये A वर्टेक्स, B वर्टेक्स और ये C वर्टेक्स। अब किसी भी टाइम t पे दोनों बीट जो है वो यहाँ पे आ गए। अब दोनों बीट ऐसे सेम डिस्टेंस कवर करेंगे क्योंकि आइडेंटिकल है, ठीक है। तो सेम सेट ऑफ फोर्सेस लगेंगे सेम टाइम के लिए, तो उनका इफेक्ट भी सेम होगा, ठीक है। और ये इधर मूव करते हैं अलोंग द साइड्स। अब क्या होगा, आप देखोगे तो सिस्टम पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो इस बीट पे स्मॉल mg एक्ट कर रहा होगा, इस बीट पे भी वही mg एक्ट कर रहा होगा। और ये यूनिफॉर्म इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका कुछ मानते मास कैपिटल M है, उसका वेट ऐसे एक्ट कर रहा होगा। अब आप देखोगे तो क्या होगा कि इस एक्सिस के थ्रू mg का लाइन ऑफ एक्शन पास कर रही है, कैपिटल mg का लाइन ऑफ एक्शन पास कर रहा है, तो उसका टॉर्क जो है वो 0 होगा। और ये दो जो लाइन ऑफ एक्शन है स्मॉल mg के, वो है एक्सिस के पैरेलल, तो इनके कारण भी कोई टॉर्क एक्सटर्नल नहीं जनरेट होगा। तो यानी हमारे पास क्या है, टी नेट एक्सटर्नल वो क्या है 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो है वो है 0। तो यानी हम बोलेंगे L इज कंजर्व्ड। तो L कंजर्व्ड होगा, तो यानी कि एक तो वैल्यू हमें पता चलेगी कि L जो है वो कंजर्व्ड रहेगा। अब हम देखते हैं L क्या होता है, L होता है I ओमेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शुरुआत में जब बीट यहाँ पे था, ठीक है, ये दोनों बीट्स यहाँ पे थे, तो दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका एक्सिस से कोई डिस्टेंस था ही नहीं। अब क्या है, अब वो जब नीचे आ गए तो उनका कुछ डिस्टेंस x हो गया, ठीक है, और वो फिर अब और नीचे आ जाएंगे, मान लेते हैं यहाँ पे उनका डिस्टेंस x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है, x प्लस डेल्टा एक्स। तो उनके कारण क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का बढ़ रहा है। तो ये जो है I कांस्टेंट नहीं रह रहा है। अब ये हमारा L कांस्टेंट है और I कांस्टेंट नहीं है, तो L को कांस्टेंट करने के लिए ओमेगा को भी चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंजर्व्ड नहीं है और ओमेगा भी कंजर्व नहीं है, ठीक है। और सिस्टम पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ स्मॉल mg's और एक कैपिटल mg। इसका मतलब क्या है कि ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग, ठीक है। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, एनर्जी हमारी कंजर्व रहेगी, ई कंजर्व। तो हमारे पास क्या आ गया, L कंजर्व हो गया और E कंजर्व हो गया, I और ओमेगा कंजर्व नहीं रहे। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है।